Letter to God is a short story written by G.L. Flint. The story shows the strong faith of a poor farmer in God and also highlight human kindness and irony. It tells how blind faith can sometimes prevent a person from understanding the truth. A letter to God G.L. फुत्संग द्वारा लिखी गई एक कहानी है। यह कहानी एक गरीब किसान के ईश्वर में अटूट विश्वास, मानवीय दया और जीवन की विडंबना को दर्शाती है। यह बताती है कि अंधविश्वास कभी-कभी इंसान को सच्चाई समझने से रोक देता है। Lancho was a poor farmer who lived with his family in a small house on the top of a hill. His house was surrounded by fields of ripe corn. He completely dependent on his crops for food and money. He worked very hard and hoped for a good harvest. लैंचो एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर बने छोटे से घर में रहता था। उसके घर के चारों ओर पकी हुई मकई की फसल थी। वह अपने भोजन और जीवन यापन के लिए पूरी तरह फसल पर निर्भर था और अच्छी पैदावार की उम्मीदें करता था। One day Lancho noticed dark clouds in the sky. He became happy because rain was necessary for a good crop. Soon it started raining and Lancho felt satisfied. But suddenly the rain turned into a heavy hailstorm. एक दिन लैंचो ने आसमान में काले बादल देखे। वह खुश हो गया क्योंकि फसल के लिए बारिश ज़रूरी थी। शुरुआत में बारिश अच्छी थी लेकिन अचानक बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। The hailstone destroyed the entire crop within an hour. The fields were covered with white hailstones and looked as if they were covered with salt. Lancho was completely shocked and broken because his hard work was ruined. ओलों ने एक घंटे में पूरी फसल नष्ट कर दी। खेत सफ़ेद ओलों से ढक गए और ऐसे लगने लगे जैसे उन पर नमक बिछाओ। लैंचो का सारा परिश्रम बेकार चला गया और वह बहुत दुखी हो गया। Lancho knew that his family would starve because there was no food and no money left. However, he had deep faith in God. He believed that God always helps honest people and would surely help him in this difficult time. लैंचो जानता था कि अब उसके परिवार को भूख का सामना करना पड़ेगा क्योंकि न खाना बचा था और न पैसे। फिर भी उसका ईश्वर में गहरा विश्वास था। उसे भरोसा था कि भगवान ईमानदार लोगों की मदद जरूर करता है। The next Sunday, Lancho wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the next harvest. अगले रविवार लैंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। उसने भगवान से 100 पैसों मांगे ताकि वह दोबारा खेत बो सके और अगली फसल तक अपने परिवार का पालन कर सके। The postmaster saw the letter addressed to God and was deeply moved by Lancho's faith. He did not want Lancho's faith in God to be broken, so he decided to help him. डाकघर के पोस्टमास्टर ने भगवान के नाम लिखा पत्र देखा और लैंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। वह नहीं चाहता था कि लैंचो का ईश्वर से विश्वास टूटे, इसलिए उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। The postmaster collected money from other employees and added some money himself. In this way, he managed to collect only 70 pesos. He put the money in an envelope and sent it to the Lancho in the name of God. पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए और कुछ पैसे खुद भी दिए। इस तरह वह केवल 70 पैसों ही जुटा सका। उसने पैसे लिफाफे में डालकर भगवान के नाम से लैंचो को भेज दिए। When Lancho received the letter, he was not surprised at all. He was sure that God had helped him. But when he counted the money and found only 70 pesos, he became angry. जब लैंचो को पत्र मिला तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने ही पैसे भेजे। लेकिन जब उसने 70 पैसे गिने और 70 पैसों पाए तो वह नाराज हो गया। लैंचो believed that God could never make a mistake. So he thought that someone at the post office had stolen the remaining money. He wrote another letter to God asking for the rest of the money and requested God not to send it through the post office. लैंचो को लगा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने सोचा कि डाकघर के किसी कर्मचारी ने बाकी पैसे चुरा लिए। उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा और बाकी पैसे मांगे तथा डाकघर से न भेजने की प्रार्थना की। The story ends with irony. Lancho's faith in God remained
strong, but he loses faith in human beings who actually help him. The story teaches us about faith, kindness, and the irony of life. कहानी विडंबना के साथ समाप्त होती है। लैंचो का भगवान पर विश्वास बना रहता है, लेकिन वह उन इंसानों पर विश्वास खो देता है जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की थी। यह कहानी विश्वास, दया और जीवन की विडंबना सिखाती है। अब देखो, इसमें मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हु वाज लैंचो? लैंचो कौन था? ए फार्मर, किसान था। उसके बाद है व्हाट डेस्ट्रॉय लैंचोस क्रॉप? लैंचो की फसल किससे बर्बाद हो गई? हेल स्ट्रॉम से, ओलो से। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड? भगवान से कितने पैसे मांगे? 100 पैसोस। हु हेल्प लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी? लैंचो से पैसे प्राप्त करने में किसने सहायता की? पोस्ट मास्टर ने। होम डिड लैंचो ब्लेम फॉर स्टीलिंग द मनी? पैसे कम पड़ गए, चुरा लिए गए, ऐसा ब्लेम लगाया। किस पे ब्लेम लगाया? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारी पे ब्लेम लगाया। उसके बाद है डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ लैंचो? लैंचो का चरित्र चित्रण बताओ। लैंचो आदमी कैसा था? इसमें लगभग समरी की बातें आती। लैंचो वॉज ए पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैड डीप एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट God would always help honest people in difficult times. Lancho was simple and innocent, but his faith was blind. Because of this blind faith, he failed to recognize human kindness. Even after receiving help from the post office employees, he doubted them and blamed them for stealing money. लैंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसका भगवान में गहरा और अटूट विश्वास था। वह मानता था कि ईश्वर कठिन समय में ईमानदार लोगों की सहायता जरूर करते हैं। लैंचो सरल और भोला था, लेकिन उसका विश्वास अंधा था। इसी कारण वह इंसानों की अच्छाई को नहीं समझ पाए और मदद करने वालों पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। हाउ डिड द हेलस्टॉर्म अफेक्ट लैंचोस लाइफ? मतलब ओलो ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया? द हेलस्टॉर्म completely destroyed Lancho's crop within an hour. His hard work of the whole year was ruined. The fields were covered with hailstone and looked white like salt. There was no food left for the family and no money to survive. This natural disaster brought Lancho and his family to the edge of starvation and forced him to seek help from God. ओलावृष्टि ने 1 घंटे में लैंचो की पूरी फसल नष्ट कर दी। साल भर की मेहनत बेकार हो गई। खेत ओलों से ढक गए और नमक जैसे सफ़ेद दिखाई देने लगे। परिवार के पास न भोजन बचा, न ही पैसे। इस प्राकृतिक आपदा ने लैंचो और उसके परिवार को भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया। वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड? कि लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? क्यों लिखा? कि लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन हिम। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन of his crop, he had no money to sow the fields again and no food for his family. He believed that God could see everything and would surely help him. Therefore, he asked God to send him 100 pesos to survive and start farming again. लैंचो ने भगवान को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। फसल नष्ट होने के बाद उसके पास खेत बोने के लिए पैसे नहीं थे और परिवार के लिए भोजन भी नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखते और उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने 100 पैसों मांगे। How did the postmaster show kindness to Lancho? The postmaster was deeply moved by Lancho's faith. हाँ, प्रश्न ये है कि हाउ डिड पोस्टमास्टर शो काइंडनेस टू लैंचो? कि पोस्टमास्टर ने लैंचो की सहायता किस प्रकार से की? कि द पोस्टमास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लैंचोस faith in God. He did not want Lancho's faith to be broken, so he decided to help him. He collected money from other employees and added some money himself. Although he could collect only 70 pesos, he sent it to Lancho in the name of God. पोस्टमास्टर लैंचो के भगवान में विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूटे, इसलिए उसने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए और कुछ पैसे खुद भी दिए। हालांकि केवल 70 पैसे ही जुटा पाए, फिर भी उसने भगवान के नाम से लैंचो को भेज दिए। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो कहानी है उसमें क्या विडंबना है, क्या इसमें व्यंग्य है? कि द आयरनी ऑफ द स्टोरी इज दैट लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड बट नो फेथ इन ह्यूमन बींग्स। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प हिम सेल्फलेसली बट लैंचो सस्पेक्टेड दैम ऑफ स्टीलिंग मनी। ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक बट ह्यूमन्स कुड। Thus the people who helped him became ones he blamed, which creates irony. कहानी की विडंबना यह है कि लैंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, लेकिन इंसानों पर नहीं। डाकघर के कर्मचारियों ने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की, फिर भी लैंचो ने उसे
उन्हें चोर समझा। यह मानना था कि भगवान गलती नहीं कर सकते लेकिन इंसान गलती कर सकते। यही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है।